آئے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے یعنی کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ ایک انسان یہاں سے دلی کا سفر کرتا ہے، یہاں سے بمبئی کا سفر کرتا ہے، لیکن ہاں اس سفر پر جانے سے پہلے سامان کی تیاری کر لیتے ہیں کہ ہمیں سفر پہ یہ چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ میرے بھائیوں، یہ ایک انسان جب ہندوستان کو چھوڑ کر دوسرے ملک کا سفر کرتے ہیں اس کے لیے الگ تیاری کر لیتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اتنا جان لیجئے، ہم بمبئی گئے، ہم دلی گئے، وہاں سے تو گھر واپس آ سکتے ہیں، سعودیہ بھی جائے وہاں سے بھی واپس آ سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے اے لوگو تم کل قیامت کے دن کے لیے تیاری کرو، جہاں تم جاؤ گے تو وہاں سے لوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے، وہاں سے تم لوٹ نہیں آ سکتے ہو۔ میرے بھائیوں اس لیے دنیا میں ہر انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کا حساب لگا لینا چاہیے کہ ہم نے دنیا میں کتنی نیکیاں کی ہے، ہم نے دنیا میں کتنے گناہ کے کام کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اے لوگوں جس نے اپنے نفس کو روک لیا، بری خواہشات سے روک لیا، شراب پینے سے روک لیا، جوا کھیلنے سے روک لیا، اللہ کہتا ہے جس نے اپنے نفس کو بری چیزوں سے روک لیا ہم اس کے لیے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ بنا دیں گے، ہم اس کے لیے جنت تیار کر دیں گے، لیکن ہاں شرط ہے اپنے نفس کو بری چیزوں سے روکنا ہے۔ شراب پینے کے تمہیں اڈا مل گئے، شراب پینے کا تمہیں اڈا نظر آ گئے، تمہیں جوا کھیلنے کا اڈا دکھائی دے دیا، تمہیں زنا کرنے کی جگہ مل گئی، اللہ کہتا ہے اپنے نفس کو بری خواہشات سے اگر روک لیا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو بری چیزوں سے روک لیا، اللہ کہتا ہے بندو تمہارے لیے خوشخبری ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو تمہارے لیے جنت ٹھکانہ ہے۔ دل چاہتا ہے کہ شراب پی لوں، دل چاہتا ہے کہ زنا کر لوں، دل چاہتا ہے کہ جوا کھیلوں، اگر ہم نے اپنے نفس کو بری چیزوں سے روک لیا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو اللہ کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہم تمہارا ٹھکانہ جنت کر دیں گے۔ اپنی آپ کو اطمینان کرنا ہے میرے بھائیوں، اسی چیز کو اللہ حکم دیتا ہے اور اسی چیز کے بارے میں کہتا ہے لوگوں تمہیں اپنے اوپر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ دنیا میں ہماری نیکیاں ہی نیکیاں ہے، دنیا میں ہماری نیکیاں زیادہ ہے، گناہ کم ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم نے اپنے نفس کو مطمئن کر لیا، اگر نفس مطمئنہ تمہاری اندر پیدا ہو گئے، اللہ اس نفس کو آواز دے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ کہے گا اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والے روح میرے پاس لوٹا، میرے پاس چلا، الی ربک راضیہ مرضیہ، میرے پاس لوٹا اس حال میں کہ تو بھی مجھ سے راضی اور میں بھی تجھ سے خوش، یعنی تو بھی مجھ سے خوش اور میں بھی تجھ سے خوش، دونوں ایک دوسرے سے راضی۔ پھر اللہ حکم دیتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور پھر میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، پھر میرے صالح بندے میں شامل ہو جا، اور اللہ کہتا ہے پھر میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے نفس مطمئنہ کو، اور آواز دے رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے روح، اطمینان والے روح سے اللہ رب العالمین آواز دے گا۔ اگر ہمارا نفس ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ ہم مطمئن ہیں، ہماری دنیا میں نیکیاں زیادہ ہے، ہمیں بھروسہ ہے ہمارے گناہ کم ہے، اللہ اس نفس کو آواز دے گا کہ آ جا اور میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، نیک بندوں میں شمار ہو جا اور پھر جنت میں داخل ہو جا۔ میرے بھائیوں لیکن ہاں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ضروری ہے، اس لیے اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے، ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے، ہر نفس کو غور کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اگر ہم اپنے نفس پر جھانک کر دیکھ لیں تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔
वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, मेरे भाइयों, ये खलीफा अव्वल है। अल्लाह के नबी का इंतकाल हो जाता है, अल्लाह के नबी का इंतकाल हो जाता है और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनाए जाते हैं। मेरे भाइयों, उनका एक गुलाम था और मामूल ये था कि दिन भर कमाएंगे, दिन भर मजदूरी करेंगे और कुछ कमा कर लाएंगे और अबू बकर उन्हीं में से कुछ लेकर अपने खाने के लिए ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। उस जमाने में गुलाम चलता था, गुलाम कमा कर ले आया और अपने मालिक को दे दिया। अबू बकर सिद्दीक उसी में से कुछ खाया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि अबू बकर सिद्दीक ने बगैर गुलाम को पूछे हुए वो खाना खा लिया। डेली पूछा करते थे कि ऐ मेरे गुलाम, बताओ तुम कहां से कमा कर लाए हो। एक दिन नहीं पूछा और खा लिया। जब खा लिया तो गुलाम ने पूछा, ऐ मेरे मालिक है अबू बकर, आप रोजाना मुझसे पूछते हैं कि ये कमा कर कहां से लाए, ये हलाल कमाई है या हराम, लेकिन आज आपने नहीं पूछे। ऐ मेरे मालिक, जानते हो ये कमाई किस चीज की है, ये जो मैंने लुकमा आपको दिया ये हलाल है या हराम। अबू बकर ने कहा नहीं। गुलाम ने कहा, मेरे मालिक, मैंने जमाना जाहिलियत में कुछ अरसा पहले, कुछ महीना पहले एक कहानत गढ़ी थी। रास्ते में कोई जा रहा था, शौहर और बीबी के पेट में बच्चा था। उसने मुझसे पूछा, ये बताओ मेरी बीबी के पेट में बच्चा है या बच्ची, यानी लड़का है या लड़की। मैंने बता दिया कि आपकी बीबी के पेट में बच्चा है, लड़का है, और ठीक आज उसका बच्चा हो गया और मेरे पास आया और कहानत के तौर पर उन्होंने मुझे कुछ एवाज के तौर पर कुछ रुपया दे दिया, कुछ सामान दे दिया, कुछ खजूरें दे दी। मैंने ले आया और आपको दे दी और आप उसको खा गए। आप डेली पूछा करते थे कि बताओ ये हराम की कमाई है या हलाल की, आज आपने नहीं पूछा। ये कमाई मैंने कहानत गढ़ी, उसके ये एवाज है। अबू बकर को जब पता चला, फौरन अपनी उंगली को हलक के अंदर डाली और कै करना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, और इतना कै किया कि जितना खाया था पूरा उसने बाहर कर दिया। मेरे भाइयों, एक टाइम का खाना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हराम का नहीं खाया। जब पता चला कि हाँ हराम की ये कमाई है, हराम का ये पैसा है, हराम का ये सामान है, अबू बकर सिद्दीक ने फौरन कै किया और पूरा सामान बाहर कर दिया। मेरे भाइयों, ये फिक्री आखिरत नहीं थी तो और क्या थी। वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो खाना निकाला। ये हम और आप है कि दुनिया में अपनी औलाद की चाहत पूरी करने के लिए, दुनिया में हम और आप अपनी बीबी की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए हराम कमा कर लाते हैं और उन्हें खिलाते हैं। एक टाइम का खाना था, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गवारा नहीं हुआ। वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। अबू बकर सिद्दीक को जब पता चला कि ये हराम कमाई की है तो अबू बकर ने फौरन कै किया और उसको बाहर कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी की मजलिस में लोग बैठे हैं, सहाबा बैठे हैं, कुरान की आयत तिलावत की गई। तुलियत हाज़िहिल आया इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहन नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा। यह आयत तिलावत की गई जिसका माना ये होता है, ऐ लोगों, खाओ पाकीज़ा रिज़्क़ को जो हमने तुम्हें जमीन में दिया है, जमीन में जो हमने तुम्हें हलाल रिज़्क़ दिया है उसको खाओ। जब ये आयत तिलावत की गई, मेरे भाइयों, एक सहाबी खड़े हुए, साद बिन अबी वक़ास, कहने लगे, अल्लाह के रसूल, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। ऐ अल्लाह के रसूल,
ताकि मैं मुस्तजाबुद दावा हो जाऊं, मुस्तजाबुद दावा बन जाऊं। मैं जो भी दुआ करूं अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कबूल कर ले, मेरी हर दुआ कबूल हो जाए। आपने फरमाया साथ तुम अपनी खुराक को पाक कर लो, तुम अपनी गिज़ा को पाक कर लो। ऐसा जो तुम खाना खा रहे हो, जो तुम रोटी खा रहे हो, जो तुम चावल खा रहे हो, ऐसा जो तुम गिज़ा खा रहे हो उस पर एक बार झांक कर देख लो कि ये हलाल कमाई की है, ये हराम कमाई की है। तय्यिबत आमका, तुम अपने खुराक को पाक कर लो, तुम अपने गिज़ा को पाक कर लो, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। मुझे दुआ करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह तुम्हारी हर दुआ को सुन लेगा। पता चला कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है। आज हमारी दुआ इसलिए कबूल नहीं होती है क्योंकि हमने हराम का सहारा ले लिया है, हमने हराम को अपना जरिया बना लिया है। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, जिस बंदे की परवरिश सूद से हुई हो, जिस बंदे की परवरिश सूद से हुई हो, उसके लिए जहन्नम की आग बेहतर है, उसके लिए जहन्नम बेहतर है। और जिसने हराम का एक लुकमा खाना खाया, हराम का एक लुकमा खाना खाया, उसकी 40 रोज तक कोई इबादत कबूल नहीं होगी। मेरे भाइयों गौर कीजिए और हम अपनी जिंदगियों में झांक कर देखें, कितनी ऐसी हराम कमाई है जो हम अपने पेट में पल रहे हैं, कितनी हराम कमाई के लिबास जो हम ओढ़ रहे हैं, हम पहन रहे हैं। अपनी जिंदगी पे झांक कर देखें। अल्लाह कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। अबू बकर सिद्दीक का यह अमल बतला रहा है कि आखिरत का डर था, फिक्र आखिरत थी, इसीलिए तो हलाल हराम का एक लुकमा अपने पेट के अंदर जाने नहीं दिया और उंगली किया, अब उंगली को अपने हलक के अंदर डाले और जितना खाया था पूरा उसने बाहर कर दिया। मेरे भाइयों, हम अपनी जिंदगी पर झांक कर देखें और सोचे और गौर करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहें, अल्लाह दुनिया में कितनी ऐसे गुनाह के काम हमारे भरे पड़े हैं, एक लुकमा हराम का नहीं खाया। अल्लाह के नबी कहा करते थे, लोगों इन्नल अब्दा इदा अख्ता खतियतन नुकितत फी कल्बिही नुक्ततन सौदा, जो बंदा दुनिया में गुनाह करता है, जो बंदा दुनिया में खता करता है, जो बंदा दुनिया में गलती करता है, अल्लाह उसके दिल में, अल्लाह उसके सीने में, अल्लाह उसके सीने में एक सियाह धब्बा डाल देता है, उसके दिल में काला धब्बा पड़ जाता है। अगर वो तौबा कर लेता है वो धब्बा धीरे धीरे मिट जाता है, वो धब्बा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर वो तौबा नहीं करता है वो धब्बा धीरे धीरे पूरे जिस्म पर फैल जाता है, वो निशान धीरे धीरे पूरे जिस्म पर फैल जाता है। फिर उसको समझ में नहीं आता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन अच्छी चीज है कौन बुरी चीज है, नमाजी क्या है बेनमाजी क्या है, नमाज की अहमियत क्या है, नमाज ना पढ़ने वालों की अहमियत क्या है, रोजा क्या है, यानी हलाल और हराम चीजों में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। मेरे भाइयों, जब हम गुनाह करते करते वो धब्बा हमारे पूरे जिस्म में फैल जाएगा तो हमें सही और गलत का फर्क नहीं आएगा, हमें सही और गलत के अंदर फर्क करने की तमीज नहीं आएंगे। हम सही को सही, सही को भी सही और गलत को भी सही समझ लेंगे। इसलिए अल्लाह कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है, यानी कल कयामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। मेरे भाइयों, हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुलाकात होती है। एक दूसरे को सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम, एक दूसरे को सलाम करते हैं। हंज़ला कहते अबू बकर सिद्दीक मैं तो मुनाफिक हो गया, मैं तो मुनाफिक हो गया। अबू बकर कहते हैं हंज़ला क्यों मुनाफिक हो गया? मुसलमानों और इस मरघिया के रहने वाले लोगों, आप इस मंजर को, इस वाक़े को जरा एक बार ध्यान से कभी याद कर लीजिएगा, सोच लीजिएगा। हंज़ला कहता है हंज़ला मुनाफिक हो गया। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हंज़ला तू कैसी बात कर रहा है, क्यों मुनाफिक हो गया? मेरे भाइयों, हंज़ला ये कहते हैं कि आए अबू बकर, जब मैं नबी की मजलिस में होता हूँ, जब मैं किसी प्रोग्राम में होता हूँ, जब मैं किसी जलसे में होता हूँ, जब मैं किसी दीनी मजलिस में होता हूँ
اور جب میرے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، میرے سامنے جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، نبی ہمیں جنت اور جہنم کے بارے میں بتلا رہے ہوتے ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنت ہمیں دکھ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جہنم ہمیں دکھ رہی ہے، لیکن ہاں جب میں نبی کی مجلس کو چھوڑ دیتا ہوں، جب نبی کے پاس نہیں رہتا ہوں، اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہوں، اپنے بچوں کے پاس چلا جاتا ہوں، دنیا میں مشغول ہو جاتا ہوں، کاروبار میں لگ جاتا ہوں، بزنس میں لگ جاتا ہوں، تجارت میں لگ جاتا ہوں، اے ابو بکر صدیق مجھے نہ جنت یاد رہتی ہے، نہ مجھے جہنم یاد رہتی ہے، یعنی نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جنت ہمیں دکھ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جہنم ہمیں دکھ رہی ہے، لیکن وہاں سے ہٹ جاتا ہوں تو جنت اور جہنم نہیں دکھ رہی ہے۔ ایسا عام طور پر ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یعنی ہم اس مجلس میں ہیں، جب قرآن و حدیث سن رہے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم آج کے بعد سے کوئی گناہ نہیں کریں گے، آج کے بعد سے ہم صرف نیکیاں ہی نیکیاں کریں گے، اور قیامت کے دن وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ جب نامہ اعمال کھولے جائیں تو ہماری صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، لیکن یہاں سے اٹھنے کے بعد ہماری کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ حنظلہ کہتے ہیں اے ابو بکر صدیق میں منافق ہو گیا، اس لیے کہ میں نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں تو جنت یاد رہتی ہے، جہنم یاد رہتی ہے، لیکن اپنی بیوی کے پاس جاتا ہوں، اپنے بچوں کے پاس جاتا ہوں تو جنت اتنا یاد نہیں رہتی جتنا نبی کے مجلس میں یاد رہتی ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے حنظلہ کعبے کی رب کی قسم میرا بھی وہی حال ہے، میری بھی وہی کیفیت ہے، میں بھی جب نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں تو ہمیں جنت دکھ رہی ہوتی ہے، جب نبی کے مجلس میں ہوتا ہوں تو جہنم دکھ رہی ہوتی ہے، لیکن جب نبی کے مجلس کو چھوڑ دیتا ہوں، جب میں نبی کی مجلس سے اٹھ جاتا ہوں، بیوی بچوں کے پاس چلا جاتا ہوں تو کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور یہ تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس دونوں گئے، کہا اللہ کے نبی میں منافق ہو گیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں حنظلہ تو کیسے منافق ہو گیا؟ حنظلہ نے یہ ماجرا بتایا۔ حنظلہ نے کہا اے اللہ کے نبی یہ حالت ہے، جب میں آپ کے مجلس میں ہوتا ہوں تو جنت دکھ رہی ہوتی ہے، جب آپ کے مجلس کو چھوڑ دیتا ہوں تو جنت نہیں دکھ رہی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اے حنظلہ یہ وقت کی بات ہے، تم منافق نہیں ہوئے ہو، یعنی جب میرے سامنے رہتے ہو تو تمہیں جنت یاد رہتی ہے، یہاں سے چلے جاتے ہو، بیوی کے پاس رہتے ہو، بچوں کے پاس رہتے ہو، کاروبار میں لگ جاتے ہو، جنت تو یاد رہتی ہے، لیکن اس وقت تمہاری کیفیت کچھ الگ ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم منافق ہو گئے ہو۔ اے حنظلہ اے ابو بکر صدیق تم منافق نہیں ہوئے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں تھوڑی دیر کے لیے جنت اور جہنم ان کے نظروں سے ہٹ رہی ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ رہی ہے تو یہ سوچ رہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ ہم اور آپ ہیں، کتنے گناہ کے کام ہمارے اور آپ کے ہیں کہ ہم منافق ہو گئے ہیں، ہمارا منافق والا کام ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو پھر بھی پکے سچے مسلمان کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں منافق کا انجام کتنا خطرناک ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ رب العالمین جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا ہی، لیکن منافق کو جہنم کے سب سے نچلے کڑے میں، منافق کو جہنم کے سب سے نچلے درجے پہ رکھا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں منافق کی جو علامت اللہ کے رسول نے بیان کی، جب بات کریں جھوٹ، جب وعدہ کرے خلافی، امانت سونپی جائے تو امانت میں خیانت، وعدہ کرے تو خلافی۔ میرے بھائیوں منافق والے اعمال سے باز آ جائیے، منافق والے کام سے باز آ جائیے۔ تھوڑی دیر کے لیے جنت ہٹ رہی ہے، جہنم ہٹ رہی ہے تو اپنے آپ کو سوچ رہا منافق ہو گیا ہوں۔ یہ ہے فکر آخر وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو خلیفہ ثانی کہا گیا ہے، میرے بھائیوں پوری زندگی لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرتے رہے، پوری زندگی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہے۔ حضرت عمر فاروق کا حال یہ ہے، قرآن پڑھ رہے، قرآن کی آیت ہاتھ لگ گئی، سورہ طور کی آیت تلاوت کر رہے، ان عذاب ربک لواقع، اس آیت پر پہنچتے ہیں جس کا معنی یہ ہوتا ہے یقیناً تیرے رب کا عذاب برحق ہے، یقیناً تیرے رب کا عذاب ثابت شدہ ہے،
तेरे रब का अजाब होने वाला है। मेरे भाइयों, हम और आप कुरान पढ़ते हैं लेकिन हमें कुरान का मतलब पता नहीं, हमें कुरानी आयत का तर्जुमा पता नहीं। उमर जब ये आयत पढ़ी कि इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, यकीनन तेरे रब का अजाब बरक है, यकीनन तेरे रब का अजाब होने वाला है। मेरे भाइयों, जब ये आयत पढ़ी तो कशी आए, बेहोश हो गए, जमीन पर गिर गए। उमर बीमार पड़ गए, लोग इयादत करने के लिए आए। मेरे भाइयों, हजरत उमर कहा करते थे, लोगों काश कि मुझे इंसान ना पैदा किया जाता, काश कि मुझे तिनका पैदा किया जाता। एक तिनका अपने हाथ में उठाता है और लोगों से कहता है, लोगों मुझे इंसान ना पैदा किया जाता, मुझे तिनका पैदा किया जाता। कल क़यामत के दिन जब मुझे मेरा हिसाब व किताब लिया जाए, वहीदा सुहूफ नुशिरत, जब नामा अमाल खोले जाए, हमारी नेकियां ज्यादा हो, हमारी नेकियां ज्यादा हो। अल्लाह कहता है, ऐ लोगों जिसकी नेकियां ज्यादा हो, फअम्मा मन थकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर राज़िया, जिसकी नेकियां ज्यादा हो वो आयश व इशरत वाली जिंदगी में होंगे। व अम्मा मन खफ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया। मेरे भाइयों, नारुन हामिया, जिसकी नेकियां कम हो वो दहकती हुई आग में होंगे। हजरत उमर कहते हैं कि मुझे जन्नत और जहन्नम के बीच में खड़ा कर दिया जाए, ना मुझे जन्नत मिले ना जहन्नम मिले। मेरे भाइयों, इस तरह सोच रखने वाले सहाबी, इस तरह सोच रखने वाले सहाबाए किराम जो पूरी जिंदगी खिदमत करते रहे आवाम की, पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ इंसाफ करते रहे, जाती फायदा किसी से नहीं, जाती इंतकाम किसी से नहीं, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले हजरत उमर फारूक का ये हाल है, जिसको अल्लाह के नबी ने नाम लेकर कहा, उमर फिल जन्ना, आए उमर फिल जन्ना। उमर अशरे मुबश्शरा में शामिल है, उमर जन्नती है। उस उमर का हाल ये है, कुरान की एक आयत पढ़ी, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, यकीनन तेरे रब का अजाब बरहक है, तेरे रब का अजाब साबित शुदा है, होकर रहेंगे, अजाब आएगा है। जब ये आयत पढ़ी, गशी आई, बेहोश हो गए, जमीन पर गिर गए। हम और आप है पूरा कुरान पढ़ जाते हैं लेकिन हमें और आपको यह एहसास नहीं होता है। ऐसा क्यों है? वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, इसलिए कि हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए, यानी कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। मुसलमानों, हम और आप अपने गरीबानों में झांक कर देखे, हमारी जिंदगी कितनी ऐसी भरी पड़ी है जिसमें हमारा सिर्फ गुनाह ही गुनाह है। कितने ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को एक सजदा तक ना किया हो, कितने ऐसे लोग हैं जो शराब पीकर शराब की ही अड्डे में मस्त रहते हैं, शराबी के अड्डे ही में मगन रहते हैं। कितने लोग ऐसे पूरी जिंदगी शराब पीते पीते, पूरी जिंदगी जुआ खेलते खेलते अपनी जिंदगी गुजार दिए। मेरे भाइयों, ये जिंदगी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है, बहुत बड़ा अनमोल तोहफा है। इस जिंदगी के बारे में भी सवाल किया जाएगा। मेरे भाइयों, ये जो हमें जिंदगी मिली है इसको गनीमत समझिए। मेरे भाइयों, उमर फारूक का हाल ये कि ये एक आयत पड़ी तो बेहोश हो गए, कशी आए और जमीन पे गिर गए। लोग इयादत करने के लिए आए। हम और आप हैं, ना हमें कुरान से मतलब है ना हमें हदीस से मतलब है। हम तो नाम के मुसलमान रह गए, काम के नहीं। हम तो नाम के मुसलमान रह गए, काम के नहीं। आज हम नेकियों से दूर है, आज हम नेकियों से दूर है, लेकिन हाँ कितने ऐसी बुराइयां हमारे यहाँ जन्म ले रहे हैं। जैसे कि हम आज आपको मालूम ही है 31 डे ये जो हमारा गुजरा है, आज ये रात है जिसमें कितने लोग ऐसे हैं जो शामिल होंगे गुनहगारों के साथ, कितने ऐसे लोग हैं जो शामिल होंगे बदकारों के साथ और नए साल की मुबारकबादी पेश करेंगे। मेरे भाइयों, इस्लाम में किसी को मुबारकबाद देना नए साल का वो अलग बात है, लेकिन ये पहला जनवरी, 1 जनवरी जो हमारा पहला साल नहीं है, पहला दिन नहीं है, हमसे हमारा जो ये दिसंबर का महीना चला गया, ये हमसे हमारा जो 2024 हमसे गुजर गई। हमें और आपको हिसाब व किताब कर लेना चाहिए था कि हमने जनवरी में कितनी नेकियां की है, हमने फरवरी कैसे गुजारी है। मेरे भाइयों, हम तो वो छोड़िए, ये जो हमारा
दिन कल आएगा, आज ही रात हम इतने गुनाह के काम करेंगे, इतने बुराइयां करेंगे जो पूरे साल में नहीं किए जाएंगे। और अफसोस की बात है कि फिल्म स्टार जो हीरो होते हैं उसके साथ भी मुसलमान शामिल होंगे। जहां नाच गाने के अड्डे खोले जाए और लगाए जाए, वहां शो देखने के लिए मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जमात भी जाएंगे और मुसलमान नौजवान भी वहां पहुंच जाएंगे। आज की रात इतनी शराब पी जाएगी जो पूरे साल में नहीं पी जाएगी। आज की रात बाहर से तवाइफों को, बाहर से नाचने वालियों को लाए जाएंगे और नाच करवाए जाएंगे और उसमें देखने वाले मुसलमान भी शामिल होंगे। हम और आप नेकियों से तो दूर है, वो अलग बात है, लेकिन गुनाहों के दलदल में इतने फंस चुके हैं कि ना हमें फिक्र आखिरत याद है, ना हमें नबी का फरमान याद है। अल्लाह के नबी ने कहा था, लोगों तुम एक दिन ऐसा आएगा कि यहूद तुम्हें देख के शर्माएंगे, तुम्हें नसारा देख के शर्माएंगे। और आज यही वजह है कि हम उनके अमाल को करने लगे हैं। आज उनके करतूतों में आज उनके करतूतों को देखकर अपना उसको हमने पेशा बना लिया है, हमने उसको जरिया बना लिया है। हम भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, हम भी उस रात को शामिल होते हैं। और कितने नौजवान के तबके हैं जो उस रात, आज की रात में बुराइयों के दलदल में फंस जाएंगे और जिना करेंगे, शराब पिएंगे। मेरे भाइयों, तो हम अच्छाई नहीं कर रहे हैं, ऊपर से गुनाह के काम कर रहे हैं। वलतंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हर इंसान को गौर करना चाहिए। यहाँ किसी को खास करके नहीं कहा, नफ्स, लफ्ज नफ्स का इस्तेमाल किया। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है नफ्स। शैतान आपका खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, आपको बहकाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन आपका नफ्स है जो आपको बहकाएंगे। आप थोड़ी दूर आगे गए, वहां लोगों की नजरों से आप छिप गए और आप ये सोचते हैं, आपके नफ्स आपको ये उभारता है कि आप शराब पी लो, जुआ खेल लो। मरघिया वाले तुम्हें नहीं देख रहे हैं, काढ़ा गोला वाले तुम्हें नहीं देख रहे हैं। ये बहका रहे कौन? नफ्स आपको बहका रहे। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन नफ्स होता है। अगर हम नफ्स की पैरवी करने से बच जाए, नफ्स की गुलामी से बच जाए, अल्लाह ताला हमारा ठिकाना जन्नत लिखे रखा है। हमारा ठिकाना जन्नत है। फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। लेकिन नफ्स को अपने काबू में करना है, उनके काबू में आपको नहीं होना है। बुराई करने पर आमादा करें, जिना करने पर करें, शराब पीने पर करें, लेकिन आपको उनकी बात नहीं सुनना है। आपको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलना है। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक को ये सोच फिक्र आखिरत। हजरत उस्मान गनी का भी वही हाल है, जिनको अल्लाह के नबी ने दुनिया में नाम लेकर जन्नती होने का दावा, जन्नती होने की बशारत दी है और ये खुशखबरी दी है, आए उस्मान फिल जन्ना, आए उस्मान फिल जन्ना। मेरे भाइयों, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नत में जाने की बशारत सुनाई गई है। लेकिन उनका हाल ये है, जब किसी कब्र के पास से गुजरते, जब किसी कब्रिस्तान से गुजरते, वहां पर खड़े हो जाते, उस्मान गनी इतना रोते कि आपकी दाढ़ी तर हो जाती, आपकी दाढ़ी भीग जाती। मेरे भाइयों, उस्मान गनी से पूछा गया, ए उस्मान, आपके सामने तुज़करुल जन्नत वन्नार, आपके सामने जन्नत का जिक्र किया जाता है, आपके सामने जहन्नम का जिक्र किया जाता है, लेकिन आप रोते नहीं है। लेकिन आप कब्र को देखकर इतना क्यों रोते हैं? हजरत उस्मान गनी जवाब देते हैं, लोगो इन्नल कब्र अव्वलु मंजिलिम मिन मनाजिलिल आखिरा। ऐ लोगो, कब्र जो है आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। यहाँ अगर कोई पास हो गया, पहली मंजिल को कोई क्रॉस कर लिया, तो आगे के मनाजिल उनके लिए आसान हो जाएंगे और जन्नत उसके लिए ठिकाना हो जाएंगे। मेरे भाइयों, तुज़करुल जन्नत वन्नार, जन्नत का जिक्र किया जाता नहीं रोते, जहन्नम का जिक्र किया जाता नहीं रोते, लेकिन अज़ाब कब्र को देखते तो हजरत उस्मान गनी रोते और दाढ़ी भिगा देते। और ये कहा करते, लोगों इन्नल कब्र अव्वलु मंजिलिम मिन मनाजिलिल आखिरा। कब्र जो है आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। यहां अगर कोई पास हो गया तो आगे के मंजिल उसके लिए और आसान हो जाएंगे। मेरे भाइयों, वलतंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हमने अज़ाब कब्र को आज भुला दिया, हमने अज़ाब कब्र को आज हंसी मजाक में टाल दिया।
कब्रिस्तान में जाते हैं, किसी मुर्दे को अपनी आंखों के सामने दफनाते हुए देख रहे हैं, किसी मैयत को अपनी आंखों से गुस्ल देते हुए देखते हैं, लेकिन हमारी अंदर फिक्री आखिरत पैदा नहीं होती है, हमारे अंदर आखिरत की सोच पैदा नहीं होती है, हमें अल्लाह याद नहीं आता है, हमें नबी का फरमान याद नहीं आता है। लोगों वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हमने अज़ाब कब्र को भी मजाक बना लिया है। आज कब्रिस्तान का भी वही हाल है, जहां हम जाते और देखते कि कोई जनाजा हमसे उठ रहा है, वहां भी हंसी मजाक करते। लोगों क्या तुम्हें पता नहीं, आज हम जिसको दफना रहे हैं कल हमारा भी वही टाइम आएगा, हमको भी कोई दफनाएगा, कल हमें यहाँ भी आ जाना है। इसलिए कब्रों को देखकर, कब्रों को टूटी फूटी कब्रों को देखकर और उनमें पड़ी हुई टूटी फूटी हड्डियों को देखकर, पोशीदा जिस्मों को देखकर, हड्डियों को देखकर आप फिक्र आखिरत पैदा कीजिए और ये सोचिए कि ये मेरा भाई था जो मेरे साथ उठना बैठना किया करता था और आज ये कब्र के अंदर है, आज यहाँ दफन है, कल हमें यहाँ भी आना है। मेरे भाइयों, हम और आप कब्रिस्तान में भी जाते हैं तो वहां भी हंसी मजाक करते, कहीं भी हमें अल्लाह याद नहीं है, कहीं भी हमें फिक्र आखिरत याद नहीं है। कब्र के बारे में किसी ने कहा था, वल कब्र बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहु, कब्र एक ऐसा दरवाजा है लोगों, वल कब्र बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहु, कब्र एक ऐसा दरवाजा है जहां हर इंसान को दाखिल होना है। अल मौत कदहुन, मौत एक ऐसा जाम है, ऐसा प्याला है, कुल्लु नफ्सिन शारिबुहु, जिसे हर नफ्स को पान करना है, जिसे हर नफ्स को पीना है। एक ऐसा प्याला, एक ऐसा जाम है जिसे हर एक इंसान को पीना है, और कब्र एक ऐसा दरवाजा है जहां हर एक इंसान को जाना है। इसलिए हम और आप सोचे आखिरत में हमारा अंजाम क्या होगा, आखिरत में हमारा हशर क्या होगा, पता नहीं हमें जन्नत मिलेगी या जहन्नम में। हजरत उमर का मशहूर कौल है, लोगों तुम इसी दुनिया में अपना हिसाब किताब कर लिया करो, ऐसा ना हो कि तुम दुनिया में हिसाब किए बगैर मर जाओ और कल क़यामत के दिन तुम्हें हिसाब के लिए खड़ा कर दिया जाए। अल्लाह के नबी कहा करते थे, लोगों इदा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, जब उनके गरीबान पकड़ कर अल्लाह के नबी ने कहा, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीबुन आबिरु सबील, ऐ अब्दुल्लाह बिन उमर दुनिया में ऐसे हो जैसे एक मुसाफिर आदमी रहता है, थोड़ी देर के लिए आराम करता है, फिर वो अपने मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। उसके बाद अब्दुल्लाह बिन उमर कहा करते थे, ऐ लोगो इदा अस्बत फला तंतज़िरिल मसा व इदा अमसैत फला तंतज़िरिस सबाहा, जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार ना किया करो, और जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार ना किया करो। क्यों? वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। शाम हो गए, हमने दिन का हिसाब कर लिया कि दिन में हमने कितनी नेकियां की है, हमने दिन में कितने गुनाह के काम किए हैं, दिन में कितनी नमाजें पढ़ी है, दिन में कितने हमने नफल अदा किए हैं। मेरे भाइयों, हो सकता है कि सुबह का सूरज देखने से पहले पहले तुम मर जाओ, और जब सुबह हो जाए तो रात का हिसाब कर लो, हो सकता है कि शाम होने से पहले पहले तुम मर जाओ। हजरत उमर कहा करते थे, लोगों दुनिया में तुम अपनी नेकियों को तोल लो, दुनिया में तुम अपने गुनाहों को तोल लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम दुनिया में अपने गुनाह को वजन किए बगैर मर जाओ और कल कयामत के दिन तुम्हारी नेकियां तोली जाए, कल कयामत के दिन तुम्हारी पेशी हो। सबसे बड़ी पेशी कल कयामत के दिन होंगी, इसलिए दुनिया में अपना हिसाब व किताब कर लो। इसका मतलब यह है, दुनिया में अगर हम अपना हिसाब व किताब कर लेंगे तो हमें फिक्र आखिरत याद आ जाएगी, हम जरूर हिसाब लगा कर देखेंगे। और यह हिसाब ये हासिन बा से आता है, जिसका माना होता है शुमार करना, गिनना कि हमने दिन में कितनी ऐसी नेकियां की है, दिन में कितने ऐसे गुनाह के काम किए हैं। मेरे भाइयों, कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी की जिंदगी का हाल देखिए। आपने जिंदगी में दौलत से मतलब नहीं रखी, आपने जिंदगी में पैसे से मतलब नहीं रखा। एक अंसारी औरत आपके घर में आए, देखा कि आपके बिस्तर का ये हाल है, आप जिस बिस्तर पर सोते हैं बिल्कुल पतली है, जहां पर आप सोते हैं वो ऊन से भरा हुआ नहीं है। मेरे भाइयों, वो अंसारी औरत जल्दी से घर गए और एक नरम गरम बिस्तर का इंतजाम कर दिया, एक बिछौना भेज दिया। अल्लाह के नबी आए,
دیکھا کہ ایک چادر ہے جو اون سے بھرا ہوا ہے، ایک چادر ہے جو موٹی ہے۔ میرے بھائیوں، فوراً حضرت عائشہ سے پوچھا، آئے عائشہ یہ چادر کس نے دی ہے، یہ چادر کس نے بھیجی ہے؟ عائشہ کہتی اللہ کے نبی یہ چادر ایک انصاری عورت آئی تھی، اس نے دے کر گئی ہے، یہ بچھونا اس نے بھیجوایا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ تم اس چادر کو واپس کر دو، عائشہ تم اس چادر کو واپس کر دو۔ کیوں؟ مالی ولی دنیا وما انا والدنیا، عائشہ مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے، مجھے دنیا سے کیا سروکر ہے؟ عائشہ میں اگر چاہتا اللہ سے دعا کرتا تو اللہ پہاڑ کو بھی سونے اور چاندی کا کر دیتا، میں جہاں جاتا یہ پہاڑ بھی سونے اور چاندی کی شکل میں میرے ساتھ ہوتے۔ میرے بھائیوں، آپ نے دنیا سے مطلب نہیں رکھی ہے، آپ نے دنیا کے مال سے مطلب نہیں رکھا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے گھر گئے، دیکھا کہ آپ کے جسم پر نشان پڑ گئے ہیں، آپ جس پر سوتے ہیں اس کو دوہرا کر کے بچھایا گیا ہے، آپ کے پیٹھ پر نشان پڑ گئے ہیں۔ حضرت عمر رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی نظر عمر پر پڑی اور تو پوچھا ہو عمر کیوں رو رہے ہو؟ اے عمر تمہیں کس چیز میں رلا دیا ہے؟ اے عمر تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں جانتا ہوں، اے اللہ کے نبی میں جانتا ہوں قیصر و کسریٰ کا جو یہ محل ہے، قیصر و کسریٰ کا جو باغ ہے وہ کتنا خطرناک ہے، وہ دنیا میں آرام کرتے ہیں، ان کے نہریں ہیں، وہ دودھ کی نہر میں دودھ پیتے، شہد کی نہر میں شہد پیتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی اس سے کہیں زیادہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن آپ کے یہ جسم کا حال کیوں ہے، آپ کے یہ صورت کیوں ہے، آپ کا ایسا حال کیوں ہے کہ آپ کے گھر میں اتنے ہی سامان ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں عمر لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، اے عمر کیا تم نہیں چاہتے ہو یہ نعمتیں جو قیصر و کسریٰ دنیا میں پا رہے ہیں، دنیا میں دیکھ رہے ہیں، مزے سے زندگی گزار رہے ہیں، اے عمر یہ نعمتیں لہم فی الدنیا ان کے لیے دنیا میں ہے، ولنا فی الآخرہ اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ اے عمر کیا تم نہیں چاہتے ہو یہ نعمتیں قیصر و کسریٰ کے لیے دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں ہو؟ حضرت عمر کہتے ہاں کیوں نہیں میرے بھائیوں۔ اس کے بعد عمر کہا کرتے تھے کراکبن استجلا تحت شجرۃ ثم راغ وترکها، اے عمر مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے، مجھے دنیا کے مال و متاع سے کیا مطلب ہے؟ میرے لیے تو دنیا کی زندگی اس طرح ہے جیسے کوئی مسافر تھوڑی دیر کے لیے کسی سائے دار جگہ میں آرام کرنے کے لیے بیٹھ جائے اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے اپنے منزل کی طرف روانہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ شارٹ میں ختم کر رہا ہوں، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ان کے 4 بیٹے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ جب یہ خبر آئی کہ ماں تیرے 4 بیٹے شہید کر دیے گئے ہیں، حضرت خنسہ الحمدللہ پڑھتی ہے، لوگوں نے کہا تیرے سہارے اڑ گئے، تو خوشی منا رہی ہے۔ انہوں نے کہا اے لوگوں میں اللہ کو جواب دے سکوں، اے اللہ تو نے 4 بیٹے نعمت کے طور پر دی تھی، میں نے چوری میں نہیں لگائے، میں نے ڈکیتی میں نہیں لگائے، میں نے زنا کرنے میں نہیں لگائے، میں نے ان 4 کو تیرے راہ میں شہید کر دیے، تیرے راہ میں لڑنے کے لیے کہا اور وہ شہید ہو گئے۔ میرے بھائیوں اسی طرح ایک انصاری عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی جان کی قربانی پیش کرتے، اتنی محبت کرتے کہ ہاں خبر آئی باپ شہید کر دیا گیا، بیٹا شہید کر دیا گیا، شوہر شہید کر دیا گیا، 4 سہارے اڑ گئے۔ انہوں نے کہا مجھے فکر ہے آمنہ کا لال کیسا ہے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ لوگوں دنیا میں ہم اور آپ جو آگ جلاتے ہیں، یہ آگ
पेट्रोल से जलती है। अल्लाह ताला कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, तुम अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपने कुंबे कबीलों को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। खुद हराम खा रहे हैं, अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? इसलिए मेरे भाइयों सोचिए कि हम भी दुनिया में आखिरत के लिए कुछ तैयारी करें और जहन्नम की आग से बच जाए और अपनी औलाद को भी बचाए। मेरे भाइयों, जो जहन्नम की आग कोई कोयले से नहीं जलेगी, डीजल से नहीं जलेगी, पेट्रोल से नहीं जलेगी, लकड़ी से नहीं जलेगी, जलेगी तो इंसान से जलेगी, जलेगी तो पत्थर से जलेगी। इसलिए हर एक इंसान को सोचना चाहिए कि हमने आखिरत के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हमारे स्टेज पे मौलाना तौहीद आलम साहब अस्सलाफ़ी हफिज़ुल्लाह पहुंच चुके हैं, स्टेज पे मौजूद है। आप उनके बयानात सुनेंगे, मुदल्लल उनकी तकरीरें हुआ करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं डंके की चोट पर कहता हूं, तकरीरी मैदान में अगर किसी को मैंने अपना आइडियल बनाया है, कुछ मशवरा लिया है, तो मौलाना तौहीद आलम अस्सलाफ़ी हफिज़ुल्लाह को, जो तकरीबन 3 साल पहले मुझे एक बात कही थी कि इन शेरशाहबादी के प्रोग्राम में आने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा। मैं इनके खिलाफ नहीं कर रहा हूं, मैं इनके बारे में बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो उन्होंने मुझे बात कही थी आज भी मुझे याद है। इसलिए मेरे भाइयों, आप उनके बयानात को सुनिए और यहां से अपने ईमान को ताज़ा करके जाइए। जो गुनाह हमने किए हैं उस पर शर्मिंदा होके जाइए और अल्लाह से माफी मांगे। गुनाहों से हो शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, गुनाहों से हो शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। मेरे भाइयों, और आखिरी बात कि हम और आप हिंदुस्तानी है, माहौल कैसा है? आपको लग रहा है कि इस्लाम मिट जाएंगे, मिटने वाले नहीं है। एक मिसरा कहकर अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हजरात इकरामी